ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। दोस्तों, आज इस वीडियो के पीछे एक बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कंफ्यूज हैं और बड़े सारे वीडियोस ऐसे बन गए हैं दोज हु टेल दैट यू शुड गो फॉर ACCA और वेदर यू शुड गो फॉर CPA और वेदर यू शुड गो फॉर इंडियन CA। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि what are the key differences and what are the points which you should take into account before deciding that whether you should go for ACCA or whether you want to go for CPA USA। मैं अभी दो प्रोडक्ट्स को लूंगा, दो कोर्सेज को लूंगा so that you can find out the difference। दोस्तों, ACCA की बात करें या USCPA की बात करें, let me talk this, that is Certified Public Accountant and that is Association of Chartered Certified Accountants, which you are all aware of। CPA USA is also globally recognized and ACCA is also a globally recognized course। दोनों accounts, tax और audit में customize in case you have a passion for accounts, you have a passion for, you want to work in the accounts profile or in the taxation profile or you want to work in the auditing profile। तो मैं ये समझता हूँ कि ACCA और CPA दोनों में से कोई भी एक कोर्स आप कर सकते हैं, बट देर आर सम माइन्यूट डिफरेंसेस जो मैं आने वाले अभी बताऊंगा सो दैट यू कैन easily decide। ACCA is a UK based qualification and it is recognized in 180 plus countries। It means you if you want to work as a global, if you want to change your job, if you want to change your profile, if you want to change your career in accounts and you are looking for global, तो आप ACCA कर सकते हैं। USCPA भी 100 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। 100 प्लस, यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जो अमेरिकन कंपनीज हैं, मैं कहूँगा कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, UAE में और इन दोज दोज कंट्रीज जहाँ पर USA की अपनी कंपनीज हैं, एसोसिएटेड कंपनीज हैं, ऑल दे रिक्वायर USCPA। So both have globally recognition। Second difference I will say is in regard to examination pattern or examination subjects। In USCPA you have to only give 4 examinations: auditing, accounts, business, regulation। 4 ही पेपर हैं जो आपको USCPA बनने के लिए करने हैं। But if I talk of ACCA और मैं अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करूँ अप्लाइड नॉलेज लेवल से लेकर इफ आई गो टू प्रोफेशनल लेवल, तो यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर 13 पेपर्स। आपको 13 पेपर्स करने हैं। 4 in the applied knowledge level, 6 in the applied skill level and 4 in the applied professional level। तो यहाँ पर 13 पेपर हैं, यहाँ पर 4 पेपर हैं। ये डिफरेंस है दोनों में एग्जामिनेशन का। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है जी। मैं कहता हूँ थर्ड डिफरेंस है इन रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी और इन रिगार्ड टू व्हाट इज द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट यू शुड हैव। आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए बिफोर गिविंग ACCA एग्जामिनेशन और CPA एग्जामिनेशन। मैं ACCA की बात करूँ तो ACCA हैज डिफरेंट एंट्री लेवल्स even after class 10th। I repeat, we have so many huge number of students who are doing from class 11th। तो 10th क्लास के एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद भी आप ACCA स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम FIA रूट। It means if whether you are a science background, arts, whether you want to go for commerce in 11th, आप ACCA कर सकते हैं। तो there are different categories in which you can have an entry in ACCA। और अगर आप 12th के बाद after 12th you want to give ACCA, then also you can start from applied knowledge level। फिर FI route नहीं होगा, knowledge level होगा। You have to give 13 papers। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन के बाद करना है, देन ऑल्सो यू कैन हैव एन एंट्री। यू हैव टू, देयर आर 5 पेपर्स विच आर एग्जेम्प्टेड एंड यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू स्किल लेवल। If you are a qualified chartered accountant, if you are a qualified professional qualification you can also enter into that। You will be getting some exemptions। It means ACCA का एग्जामिनेशन का आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, जैसे 11 से, जैसे ग्रेजुएशन के साथ, जैसे ग्रेजुएशन के बाद, जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद। बट इफ आई टॉक ऑफ USCPA, एक्चुअली में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब है अलग अलग स्टेट्स मिलकर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ USA बनाया। तो सभी स्टेट्स का अलग अलग कुछ क्राइटेरिया है, बट मोटा मोटी देखें तो दे हैव क्रेडिट सिस्टम। अगर आपको USCPA के एग्जामिनेशन देने हैं तो यू शुड हैव 120 क्रेडिट आवर्स। आपके पास 120 क्रेडिट्स होने चाहिए। जनरली अगर हम बात करें इंडियन ग्रेजुएट्स की, तो एग्जामिनेशन देने के लिए 120 क्रेडिट आवर्स आर मोर देन इनफ। बट इफ यू वांट टू लाइसेंस, मोटा मोटी देखें एवरेज, तो 150 क्रेडिट आवर्स आपके पास होने चाहिए
फॉर लाइसेंस, बट फॉर जस्ट गिविंग एग्जामिनेशन यू कैन हैव 120 आवर्स। तो एंड अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो आपके पास 150 क्रेडिट है। सो द पॉइंट इज एग्जामिनेशन के लिए 120 क्रेडिट्स हैं, एंड फॉर लाइसेंस 120 प्लस 30 150 है। अगेन इट डिपेंड फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट, बट ऑन एवरेज मैंने आपको बताया दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसीसी एंड सीपीए। दोस्तों द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एसीसी एंड सीपीए यूएसए को जिसको हम देखें, दैट इज इन रिगार्ड टू टाइम लिमिट, कि मतलब आप एसीसी कितने पीरियड में आप ये क्वालिफिकेशन को कैप्चर कर सकते हैं, ले सकते हैं, एंड हाउ मच टाइम यू रिक्वायर जनरली इन सीपीए यूएसए। मैं अगर स्टार्ट करूं सीपीए यूएसए से, एंड इफ यू आर जस्ट कॉमर्स ग्रेजुएट यू कैन इजिली कंप्लीट बिटवीन, ऐसा देखा गया कि यू कैन इजिली कंप्लीट बिटवीन 18 to 24 months, but again it depends, you know, in case you are a chartered accountant, in case you are a professional, you have a course holder and you want to go, तो आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, मतलब उस केस में 12 से 18 महीने में आप सीपी यूएसए कंप्लीट कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ऑन एन एवरेज इतना टाइम लग जाता है। बट इफ आई टॉक ऑफ एसीसीए, यू नो, ACCA में देर आर 13 पेपर्स। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम राइट नंबर पेपर नंबर 1 टू पेपर नंबर 13, तो जनरली 2.5 से 3 साल, 2.5 year to 3 years लग जाते हैं। बट सपोजिंगली आपने पहले 4-5 पेपर का एग्जामिनेशन ले लिया है, तो आप इजीली लगा लीजिए, फिर आपको 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। अगर आपने आफ्टर डूइंग सीए आप कर रहे हैं, तो यू हैव टू ओनली गो ओवर 4 पेपर्स, तो विद इन 9 to 12 months यू कैन कंप्लीट। मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 2.5 year to 3 years लगते हैं एसीसी को कंप्लीट करने में। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन, दैट हाउ मेनी एग्जामिनेशंस यू आर गेटिंग एंड हाउ मेनी एग्जामिनेशंस यू वांट टू अवेल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपना टाइम लिमिट कम कर सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दोस्तों द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एसीसी एंड सीपीए जो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज इन रिगार्ड टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दैट इज इन रिगार्ड टू प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। इट मीन्स एसीसीए के लिए आप जब 13 पेपर्स क्लियर कर लेते हैं तो यू विल बी बिकमिंग अ एफिलिएट, आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगा। मेंबरशिप मिलने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, एंड दैट इज इन रिगार्ड टू 36 months। 3 साल की आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। नो, वो एसीसी से पहले वाला भी हो सकता है, एसीसी करते हुए भी हो सकता है, एसीसी के बाद वाला भी हो सकता है, एज ए इंटर्नशिप भी हो सकता है, एज ए एम्प्लॉय भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज यू शुड हैव वर्क, यू शुड हैव एक्सपोजर इन अकाउंट्स, फाइनेंस एंड टैक्स। क्योंकि अगर आप देखें ना, एसीसी में प्रोफाइल चाहिए, फाइनेंस की प्रोफाइल है, अकाउंट्स की प्रोफाइल है, ऑडिटिंग की प्रोफाइल है, टैक्स की प्रोफाइल है, तो आपका एक्सपीरियंस इनमें होना चाहिए। बट अगर हम सीपीए की बात करें, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की बात करें, जैसे मैंने बताया वो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ स्टेट्स में दे रिक्वायर दैट यू शुड हैव अ 1 year एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कुछ स्टेट्स में 2 साल का रिक्वायरमेंट है, एंड दैट टू अंडर सीपीए ओनली, तभी आपको लाइसेंस मिलने वाला है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मेजर डिफरेंस इन दोनों में, यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे डिपेंड करता है स्टेट्स में, कई स्टेट्स में 1 year है, कुछ स्टेट्स में 2 साल है अंडर सीपीए। बट दोनों में आप एक्सपोजर अकाउंट्स में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, टैक्स में, अकाउंट्स में कर सकते हैं। सो इफ यू हैव अ पैशन टू वर्क इन दीज प्रोफाइल्स देन यू कैन चूज। यू नो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा है या ये कर लो, या मेरे पास कोई बीकासूल का कैप्सूल नहीं है, मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। आपको अब डिसाइड करना है कि आपको पाव भाजी खानी है या आपको छोले भटूरे खाने हैं, डिपेंड करता है काफ़ी सारी दूसरी बातों पे। मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो आने वाला हूँ, नेक्स्ट डिफरेंस जो आएगा दैट इज इन रिगार्ड टू कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में ही। दोस्तों द नेक्स्ट एंड द लास्ट डिफरेंस एज पर भूपेश आनंद इज दैट हाउ मच इज अ रोकड़ा आउटफ्लो, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इट मीन्स आप एसी से करते हैं तो आपकी जेब से कितने पैसे जाने वाले हैं, और अगर आप सीपीए करते हैं तो आपका आउटफ्लो कितना होगा। दोस्तों एक में तो पाउंड्स जा रहे हैं और एक में डॉलर्स जा रहे हैं, और आपको पता ही है पाउंड का रेट और डॉलर्स का रेट। नो डाउट आफ्टर कोविड सिनेरियो अगर आप देखें तो आजकल इंडिया में पेपर्स हो रहे हैं। बेटा एक वो भी ज़माना था जब लोग दुबई में देने जाते थे, नेपाल में देने जाते थे, अमेरिका में पेपर देने जाते थे। लेकिन ये अमेरिकन्स ना थोड़े से स्मार्ट हैं, उनको मालूम है कि आप इंडिया में पेपर दे सकते हो। बट जब आप इंडिया में पेपर देते हो ना, तो आपकी कॉस्टिंग उन्होंने इंक्रीज कर दी है, तो लगभग 5 लाख रुपए की आसपास की कॉस्टिंग लग जाती है। इंडियन रुपीस की बात करूं, बिकॉज यू हैव टू पे इन डॉलर्स एंड इफ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया, मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 5-5.5 लाख रुपए लग रहे हैं। बट इफ आई टॉक ऑफ एसीसीए, अगर आप एसीसीए कर रहे हैं इंडिया से,
है ना। तो मोटा मोटी देखा गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लाख तक की कॉस्ट आती है, बिकॉज यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस, यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस, यू हैव टू पे सब्सक्रिप्शन फीस। और मैंने ये 3.5-4 लाख की जो कॉस्ट कैलकुलेट किया ना, एक अजम्पशन कैलकुलेट इसके पीछे रखा। क्या अजम्पशन है कि आप एक ही बार एग्जाम्स दे रहे हो, मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव कर रहे हो। क्योंकि आप जितनी बार एग्जाम दोगे ना, तो आपको एग्जामिनेशन फीस बढ़ती जाएगी, आपको बार बार देनी पड़ेगी। तो ये आउटफ्लो है ACCA में और ये आउटफ्लो है CPA में। मुझे लगता है दीज आर द 6-7 मेजर डिफरेंसेस विच यू शुड टेक इनटू अकाउंट। आप इस वीडियो को बार बार देखना, अपने एस्पेक्ट में अप्लाई करके देखना कि आपके लिए क्या बेस्ट है, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।